ओके सो वेरी वेरी वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस एक्सपो टॉक सीरीज में। आई एम सो हैप्पी टू इंट्रोड्यूस अवर टुडेज गेस्ट फॉर द एक्सपो टॉक सीरीज। आप जैसे जानते हैं कि एक्सपो टॉक सीरीज जो है ये सब मास्टरी के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है। इन दिस इनिशिएटिव वी आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन industry and the knowledge which is required by the young professional. Many a time the young professional do not get the opportunity to get to hear people like you, and that's the reason we have started this initiative. So friends, today विद मी आज हमारे साथ हैं श्री राज तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। 30 वर्ष का उनका अनुभव है और डिफरेंट जो है प्लांट्स में अलग अलग में रहे हैं वो, और उन्होंने लीडरशिप रोल पे भी जो है कंपनी को लीड किया है। तो सर आज हमारे साथ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अ वेरी वार्म वेलकम यू टू द शो, और एक्सपर्ट ऑफ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट यू हैव गिवन योर प्रीशियस टाइम फॉर दिस एक्सपर्ट ऑफ सीरीज। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू कि आपने मुझे जो है ये मौका दिया कि मैं आपके साथ अपनी एक जर्नी शेयर कर सकूं, और जिसमें एक लोगों को मैसेज भी होना चाहिए कि हाउ पीपल आर डूइंग एंड हाउ टू डू, एंड विदाउट एनी गाइडलाइंस, with the guidelines, what the mind is saying, how they can perform their own activities by listening or by seeing such kind of people interviews and all. यस बिल्कुल सर, क्योंकि सर कहीं ना कहीं अगर लर्निंग होती है तो इंडस्ट्री में एक दूसरे से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं और मोटिवेट होते हैं। तो यही हमारा Exactly. प्रयास है कि एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें कि जो यंग इंजीनियर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो जो आप जैसे एक्सपर्ट को सुन सकें। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सर सबसे पहले सर मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा सर अपने बारे में, जो हमारे व्यूअर्स हैं, मेंबर्स हैं, आप उनको अपने बारे में एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन भी बता दीजिए। जी जी जी, बिल्कुल सर, थैंक यू। एक्चुअली शर्मा जी, मैं बताऊं, मेरा मतलब मेरा बर्थ प्लेस लखनऊ है, विच इज द कैपिटल ऑफ यूपी। एंड suddenly in 1986 we got opportunity to join Central Institute of Plastic Engineering and Technology as a training part. So I got opportunity to go Chennai. That time name was Madras. So I shifted from Lucknow to Madras in the first time so far for studies and all. And I studied over there for plastic technology and passed out from there 1989. And in 1989, that time the plastic growth was too much, and I got the opportunity to join some company at Jaipur. And that company was a very good company, and they were supplying to Rico Industries. That is Rajasthan Industrial Cooperative, something name was there. So they were supplying for wireless sets and some other equipments. Initial that time was my very young and energetic time, so I want to do something in my life. I want to not to retain as it is, as what industry is running, and we have to involve on that same culture, and we do not go for any extraordinary. So my mind was something not stable to stay on that company, and I switched over from there and joined USA Group. The name was on that time USA Rectifier Corporation India Limited. Very well-known name was on that time, and the plant was going to establish. They were going to establish the plant in Jimtal, district Nainital, जी Electronics Valley. So I joined that company. That company was manufacturing a semiconductor line. And see, the my career graph is, I am the being the base of plastic engineer, and I joined the company as a semiconductor in line because of they having separate identity, and they were some technology part out there. Uh, I was joined on the company as a plastic engineer in semiconductor plastic packaging line. So they were having about more than 700 cavities mold, and all imported machines where we have to work and go for the deliveries into the market for semiconductors. That was very challenging job in my initial time, and company was under establishment that time. So management was somewhere they are having more pressure to go for the launch and all. So suddenly I joined that company. That was my joining is from January. So it's very 1st January or something, 2nd January I was joined that company, and March was their launch.
Management was in too much pressure, and suddenly I found everything is disturbed. So I was feeling very interest to come and take the relaxation, take the challenges and do something good for the company, and just to motivate ourselves and to the company's people also. Suddenly one machine was got under breakdown. See, that machine was not related to me. That is a pure Yes. of mechanical. Okay. But I took the challenge. I will do this. I will support the management. Then suddenly I just took 4 hours for that machine. I open all the machine. Everything is open. Just to take the interest. I have to go for learning and mean something to deliver, because it is something is not working. But how to put my expertise to take out this activity. So I can tell that this is my first challenge and first experience, first my what to say, एक मोटिवेशन एंड एक हार्ड फीलिंग आई मेरे को कि ये काम करना है। और उस मशीन को खोल के मैंने दोबारा एस्टेब्लिश किया, और एस्टेब्लिश करने के बाद मैंने जो रिजल्ट दिया है, मैनेजमेंट वाज वेरी हैप्पी ऑन दैट टाइम। See, my Very 3 months only, I passed 3 months only on that company. And wow. management so pleased to see these results. Even then, they were very feeling. They was feeling very guilty कि how to do that, because this is a final machine. If it is Yes. not working, means how to launch our product. I understand. And you were not into like maintenance department. You were in, I believe, production. I'm the basically plastic department, Plastic and department. I did that machine as a challenge and did the maintenance. Means a new machine was under Very great. breakdown, and nothing was there that time to support, because Bhimtal is a hill area. From Delhi, Yes. somebody will come, they will take. So many activities were there. So management was very aggressive and told that you are the in charge of that area. And they promoted me. Even they Okay. promoted me after 6 months. Oh, great. So You took risk. Actually, sir, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा कि like you were from like I did you think you did CPAT, right? आपने CPAT कहाँ yeah, से see, किया है but सर? Chennai से, Chennai से. चेन्नई से। तो आप CPAT आपने चेन्नई से किया और आज आई एम सो हैप्पी की और इन द लीडरशिप रोल आप Yeah, काफी लीडरशिप रोल में भी रहे। yes, yes. तो आपको ये डर नहीं लगा सर कि जैसे अभी होता है कई बार की इंडस्ट्री में कि आपने एक नया रिस्क ले लिया? आई अंडरस्टैंड कि ऐसी जगह थी भीमताल, आई अंडरस्टैंड कि एक नैनीताल के पास, और काफी एक उस समय तो आप बात कर रहे हैं तो इतना दिल्ली एनसीआर से सारे स्पेयर पार्ट आते होंगे, आज भी आते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी रुद्रपुर उत्तराखंड में इंडस्ट्रियल एरिया है, बट यहाँ से बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स आते हैं जो yes, दिल्ली yes. एनसीआर से आते हैं। हरिद्वार में भी आप अभी काम कर रहे हैं, तो आपने रिस्क लिया, तो आपको ये डर नहीं लगा कि अगर ये सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं, मैंने रिस्क इसलिए लिया कि अल्टीमेटली इट इज अंडर बैकडाउन, and Okay, if okay, वैक्सीन if नहीं I चल can रहा। put my expertise, and learn something and give something, means in both the way, I was learning and giving also the company. So I got that challenge successful. That's really interesting। मतलब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि अब ये था कि ठीक तो थी नहीं मशीन, तो आपने कहा भाई अगर हाथ आजमा लेते हैं, ठीक हो गया तो भाई नाम हो जाएगा, और नहीं Very ठीक हुई good. तो ठीक है, वो फिर वो तो हम है ही नहीं इस डिपार्टमेंट के। वही नहीं, तो मैंने उसको एक ऐसे चैलेंज लेके उसको काम किया, और मैनेजमेंट वाज वेरी सो प्लीज्ड। एंड आप बोलिए, मैंने उसमें उस कंपनी के अंदर मैं 5 साल था, और 5 साल के अंदर मुझे कंपनी ने 1 साल के लिए जर्मनी में बैठा कर रखा था, ओह दैट्स गुड। और नॉट जर्मनी इन भी दैट आप? सेम लाइन, या नॉट इन दैट सेम लाइन। जी। मैनेजमेंट से मेरा उसमें थोड़ा सा ये भी हुआ कि भाई आई एम द प्लास्टिक पर्सन एंड यू आर जस्ट पुटिंग मी इन सम अदर लाइन। They told, no, you are the expert of the activity, you know everything and you can do everything. So you think about the resistance line. I was working on the resistance line in Germany for the 6 months to bring that project to India, which That's is good. not even being related to me, not even being related to me that line. I worked and I got training over there for to take the project in and establish in India. Suddenly, the same as the management was thought, I did the same. After 6 months, I came back to India, and that project also came and established USA Marconi Micro Devices India Limited at Bhimtal. I got too much success on that to establish the project. And suddenly the management was so pleased to me, and they know how Mr. Tiwari is doing. So they shifted to another project in the same time. Again, they sent to me Germany.
Oh, Then they great. told, You okay, went you Germany are, 2 times. Great. That's yeah, good. you are the good person, and you now you have to again going to shift in the plastic line. That's good. So about, I think so, first time I worked with the CNC machines in Germany. This is a year of 1994 something. 1994. 93 is was for some for resistance plant, and 94 was again. You were like a project head, like आपको एक तरीके से आप project head बन गए थे, Yes, एक yes, kind of जर्मनी जाइए वहां से learn everything and then bring the technology and establish the plant. yes, yes. So the company name was in Germany Lezak HBB. Okay. That is the full name is Lezak highly metal bowlamentary battery, means semiconductor device. Yeah. So Great. that plant was established in Delhi in front of the Sibbal Cinema. That's So, good. so that was also my good journey on that, and I can say I learned too much. I put my more expertise. I even learned more expertise, and even delivered also more expertise. So it is a between give and take business was uh, interesting business was going on that time. That's good. Suddenly, on that time after that project, I got married, Yeah. and after married, I feel my salary is little Yeah. not comfortable. Yeah. It ये is होता है not सर, supporting when me. engineers get married तो कहीं ना कहीं they understand कि यार ये जो अब तो खर्चे चल जाते थे before, because they were alone and then they had not that much expenses, but then they when they get married obviously like खर्चे बढ़ जाते हैं. और अभी तो ये भी होता है सर, like when I got married to my father-in-law, he asked me what is your salary, so I told him this is my salary. तो then there was some kind of fear कि यार ये सैलरी कम है तो कहीं ऐसा तो नहीं रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे. Yes, yes, yes. दिस इज व्हाट आई थिंक इन द मैनी इंजीनियर्स वर्किंग प्रोफेशनल माइंड कि भाई शादी Yeah, होने वाली है, अब तो जो है सैलरी ठीक ठाक होनी चाहिए. तो सर बिल्कुल आपके ठीक. दिमाग में आया कि अब मैरिज होगी और सैलरी ठीक ठाक और अच्छी होनी चाहिए, हाँ, तो फिर क्या नहीं, किया मैंने आपने? मैंने कहीं फील किया कि मेरी सैलरी अभी जो है कम है, और मैं आप अकेला तो सर्वाइव कर सकता था, लेकिन अलॉन्ग विद द फैमिली मैं सर्वाइव नहीं कर सकता एब्सोल्युटली. हूँ, तो मुझे मैनेजमेंट से प्लीज करना चाहिए. मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे को थोड़ा सा अब आपकी तरफ से हमें सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा. Even in that time, the electronics senior was not running very good. They told, okay, we'll do it, but somehow I have what my expectation was there, I was not able to get that. And due to my expertise and due to my knowledge, there people are knowing about me. So suddenly I started searching some job. I got 2 3 opportunities on the same time. Imagine. But I joined Mozarware India Limited. That was that time in a good company, and all Japanese concept was going on there. Even machines is also from Germany and Japan, and it is full automotive plant. I joined that plant, and I worked over there about not much, only a year, because I was not feeling that there is something to do or something to learn. And because the automation system was there, I cannot even open the mold and even not to touch the machine. So what is the role of mine? How I am the engineer? I am just simply a guideliner, do as director. Means do as director. I don't like do as the director. If somebody will tell me, and then I will do. Yes, and now I don't think it's companies, and like I think they have changed their business model, and they are not into same business. No. I think so. They now stop the company. The company is changed the system also, but somehow the crisis was there in business, so they stopped. I think वो सर एक with time that actually ये भी सिखाता है कि समय के साथ में you have to change your technology, and everything was good. It was technology based business, but CDs they were making CDs. तो ये भी दिखाता है कि जैसे बिजनेस जैसे सीडी का जमाना ही चला गया, अभी पेन ड्राइव भी आप देखिए कि जा रहा है. तो ऐसे ही जैसे ये नोकिया जैसे चला गया काफी, दोबारा चलो कमबैक भी हुआ, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से मार्केट नहीं पकड़ पा रहा. तो यही है कि जी तो जैसे मतलब टेक्नोलॉजी आउटडेट होती है, वैसे इंजीनियर्स की जो स्किल है या नॉलेज है वो भी आउटडेट हो जाती है. तो ऐसा नहीं है कि हमें भी अपनी स्किल या कॉम्पिटेंसी बढ़ाते रहनी चाहिए, हमेशा साफ करनी पड़ती है, शार्प करनी पड़ती है जी एब्सोल्युटली. तो सर फिर आपका सफर जो है जी, तो आप मैं आपको बताता हूँ, बड़ी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग रही है. आप सुनेंगे तो मजा आएगा आपको भी. क्या मैंने क्या चैलेंजेस लिए. मैंने क्या किया उस समय, ऑटोमोटिव का जो है थोड़ा मूड आया कि ऑटोमोटिव में बड़ा अच्छा होता है. मैं ऑटोमोटिव LML स्कूटर कानपुर में शिफ्ट हो गया. That time Supremo scooter was launched. That was running very well. So they started going to produce the component in LML Kanpur. So they
install the Toshiba injection molding machine that's again from Japan, and the plan was about 10 machine. So I shifted to LML scooter, and for that, see, the LML scooter was a very big company. For Yes. me, I was going to learn everything, even injection molding, even R&D, even PDC, even paint activity, even machine shop, everything I'm going to learn. So I suddenly joined that company. Yeah. And I even learned a lot of things over there. All the colleagues were supported me, and all the seniors were also supported me on that time. The project was running very good, and the market demand is also too much. Even sometimes we are running 12 hours, 14 hours also to achieve the targets. और ये जर्नी अच्छी चल रही थी हमारी. इसके बाद सडनली क्या हुआ कि LML स्कूटर में डाउनफॉल आ गया. स्कूटर कंसेप्ट खत्म हो गया. मोटरसाइकिल कंसेप्ट में उन्होंने स्विच किया. मोटरसाइकिल कंसेप्ट में स्विच तो किया, लेकिन वो लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाए और ग्राफ जो है डाउन हो गया. It was very late, I think. Very late they transition to LML Freedom. 10-12 कलर आप उन्होंने लॉन्च करे. हाँ, वो मेरे सामने कलर लॉन्च हुए थे. आपके सामने कलर लॉन्च हुए थे. या मेरे सामने लॉन्च हुआ था, बट वो चल नहीं पाया, उतना लेवल पर सक्सेस नहीं हो पाए. तो हाँ, उसी समय क्या हुआ कि एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई पूना जाने की. पूना में बड़वे इंजीनियरिंग हुई, फर्स्ट टायर कंपनी फॉर बजाज. So they were also putting a plant. Yeah. And they called me suddenly, and I went from Kanpur to Pune. I started again new journey. Again new challenges. That plant was new, and the business was not running over there. Every problems are running, some quality issues, some production issues, lot of issues was going on during my time. So actually, what to say, that being a North Indian, or we can say as my blood activity, I was more dedicated and more honest with the job. Yeah. I was always giving my full effort to say that if I am here, then nothing to be in a trouble. Yes. Nobody will be in trouble. So that is my thought. The company is trouble means why I am sitting here. I have to take all the challenges. And suddenly I took the challenges. I started working with the technology, with the commercial. See, techno-commercial, I became on that plant only. Earlier I was a only technical, but techno-commercial I become on that Balwe engine. Okay. I took the plant as a lead, and I started doing activity with the coordination with the customer, cost activities, how to take the cost, how to calculate the cost of the component, how to customer satisfaction, what is the quality, everything I started doing on that. So nice. That I involved with the LG business, and suddenly I involved with the hair business, suddenly I involved with the Samriddhi business, suddenly involved with the partially Bajaj business. So 4-5 business I was there to involve and taken lead. As I am the owner. As a lead, I am the owner. I want to establish this company, and I want to make into the profit this company. Anyhow, that is my skill, and how I can prove my skill. So suddenly, after 6 months, I got success. After 6 months, I got success. Yes. वो सडनली नहीं मिला, आपने मेहनत करी, उसके लिए काम किया, तो वो मतलब ऐसे लगता है कि सडन मिल गया, लेकिन उसके पीछे आपकी जो 6 महीने की मेहनत रही, तो मतलब वो तो मेरी एक मतलब स्किल थी जिसको मैं अपने आप को डिलीवरी कर रहा था. जिसमें स्किल है मैं डिलीवर कर रहा हूँ. बट सेटिस्फेक्शन कितना आया कि आफ्टर 6 मंथ मैंने जो अचीव करना था, 6 मंथ में मैंने एक खोखा का बिजनेस किया. खोखा मींस 1 करोड़ का बिजनेस किया. जो कंपनी 25 लाख का बिजनेस नहीं कर रही थी पर मंथ. दैट्स गुड. आप 4 गुना बिजनेस बढ़ा दिया 6 महीने में. तो ये तो ये मतलब एक ये चीज, आप टेक्निकल से टेक्नो कमर्शियल में आ गए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक लर्निंग है कि अगर आपको लीडरशिप रोल में जाना है या आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मतलब ऑब्वियसली आगे चल के तो जो हमारे व्यूअर भी वॉच कर रहे हैं, तो ये भी समझ में आता है कि एक डिपार्टमेंट में बंद के ना रहे. आपको मौका मिले तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट का भी मजा लें और आप एक स्किल को एनहांस कर सकते हैं. अपनी स्किल को कैसे शार्प कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को कैसे एनहांस कर सकते हैं, वो करने का मौका मिले तुरंत कर लेना चाहिए. तो मैं उस कंपनी में 3 साल था, और मैं बहुत एस्टेब्लिश कंडीशन में काम कर रहा था. और एज ए लीडर मेरे को मतलब जाए कि मेरे को मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, कहीं पर कोई प्रेशर नहीं था. मैं क्या कॉस्ट कर रहा हूँ, मैं किस कस्टमर से क्या बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट से कोई लेना प्रॉफिट जा रहा है, मैनेजमेंट से कोई किसी ने पूछा नहीं तिवारी जी आप कर क्या रहे हो, व्हाट यू डूइंग. वो तो सो एज ए ऑनर आई वाज डूइंग. ब्रीफ जब हो जाता है, जब मैनेजमेंट को बहुत सारी कंपनीज कहती हैं भाई
ये कंपनी ऐसी है, बहुत ज्यादा मतलब बॉस लोग परेशान करते हैं। तो ये भी एक लर्निंग है आपकी स्टोरी से कि अगर हाँ आप एक काम करते हो, बिलीव अगर पैदा कर देते हो, तो फिर वो आप पे विश्वास कर लेती है। एक बार आप उसे प्रूव करके दिखाओ, क्योंकि आपने पहले यस 6 महीने मेहनत करी, आप प्रूव करके दिखा दिया, तो अब नाउ दे हैव दिस ट्रस्ट कि यार हाँ, प्रूव ये करके दिखाया बंदा जाए। कर लेगा। हाँ, और इवन आप बोलिए कि अगर बोला जाए तो इतनी बढ़िया टीम, स्ट्रॉन्ग टीम मैंने डेवलप की वहां पर कि मैं कुछ नहीं करता था, मैं अपने ऑफिस में बैठा रहता था। मैंने लास्ट टाइम, हम्म। लास्ट डेज ऑफ माय वर्किंग, ऑफिस में बैठा, लोग मेरे को मतलब हमारे जो टीम के मेंबर आके देखते थे मेरे ऑफिस में, तिवारी जी बैठे हैं, दैट्स ऑल, दे आर वेरी फ्री, कि वो साहब हम्म। बैठे हैं तो मुझे कोई चिंता वाली बात ही नहीं, जो होगा वो देख लेंगे। तो मेरा काम सिर्फ ये होता था मैं कस्टमर से बात करूं, और कस्टमर से बात करके अपनी टेक्निकल टीम और अपनी जो है स्टाफ को बता दूं भाई ये करना है। वो मतलब इतने मोटिवेटेड थे मेरे साथ काम करने के लिए, वो ऑटोमेटिक सब करके बता देते थे, सब ये हो गया। तो आप समझिए उस समय इंजेक्शन मोल्डिंग का ये यूनिट था, और कम से कम 28 मशीनें मेरे पास थी उस समय वहां पर, और सबसे बड़ा टनेज जो है बोला जाए तो 650 टन का हुआ करता था, और हमारी एफिशिएंसी 99% के आसपास जाती थी, और रिजेक्शन रेशियो बोला जाए तो 1.5%, और हम जी। मैक्सिमम क्लियर कंपाउंड चलाते थे, उसमें ब्लैक भी चलाते थे, कलर भी चलाते थे, इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज थी वहां पर, और लोगों ने इतना हमें मतलब सपोर्ट किया हमारी टीम ने, कि मैंने जो गाइडलाइन दिया उसको उन्होंने परफॉर्म किया और मैं रिजल्ट दिया। तो आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड ओवर देयर, बट सडनली कहता है ना कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल के बाद कई बार मुझे लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा है मुझे, और कुछ करना है। मतलब होता है कि जब आप कोई चीज स्टेबल कर दो तो चीजें, मतलब बोलते हैं कि अब जब आपने स्टेबल कर दिया चीजों को, तो कहीं ना कहीं अब लगेगा यार कोई नए चैलेंज नहीं रह गए, तो डेफिनेटली दैट्स द टाइम व्हेन यू शुड लुक नहीं, फॉर ए न्यू चैलेंज। हाँ मतलब उस समय ऐसा लग रहा था कि मेरे को एनर्जी है, मैं भी इसे सैचुरेट हो रहा हूँ, नो नो जी। दिस इज नॉट ओके, मुझे कुछ और करना है। बट अब उस करने के लिए उस प्लांट में मेरे को कुछ बचा नहीं था, तो मुझे बाहर जी। निकलना है। ये बहुत तो होता है सर, कई लोग मतलब 10-10 15 साल, वैसे कोई बुरी बात नहीं है अगर आपको चैलेंज मिल रहे हैं, प्रोग्रेस मिल रही है, तो आप 15 साल रहो, 20 साल रहो, मेरा मानना ये है। बट अभी जो यस, ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या है कि अगर आप 2 साल 3 साल 5 साल एटलीस्ट ऐसे, कब हमारे सर भी एक एक्सपर्ट और आए थे, जो प्लांटर थे, उन्होंने ये कहा कि भाई 10 साल तक तो करियर में आप 2-3 साल में चेंज मारो, कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका ये मतलब कहना था। उसके बाद 10 साल बाद डेफिनेटली फिर आप स्टेबिलिटी की तरफ देखो, 4-5 साल देखो, और चैलेंज मिल रहा है तो करते रहो, नहीं मिल रहा तो भाई दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें क्या देखिए दिक्कत मेरे है। मेरे एक्सपीरियंस में एक चीज ये कहता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपको चैलेंज मिलता रहता है और अपनी स्किल को आप पहले शार्प करिए, सबसे पहले अपनी स्किल को शार्प करिए, उसके बाद आप चेंजेस की बात करिए। हम्म। अगर आपकी स्किल शार्प हो गई ना, तो आपको कोई भी मार्केट में बोलेगा कि आ जाओ, लेकिन आपकी स्किल शार्प नहीं हुई तो आपको मार्केट में क्या अभी झटके लगेंगे, फिर आपको तकलीफ आएगी, फिर हो सकता है आप उस लेवल को सस्टेन ना कर पाए। तो यही मेरी स्किल रही है अभी तक के, मैंने अभी तक के अपनी वर्किंग में लोगों को भी ये लेक्चर देता हूँ कि जो एक सुपरवाइजर की पोस्ट होती है ना, बहुत क्रिटिकल पोस्ट होती है, जी। और उस सुपरवाइजर के लिए आदमी को 3 से 4 साल काम करना चाहिए। क्या होता है, वो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच की कड़ी होती है, उसको एक्सपर्टीज लाने में टाइम लगता है। अगर वो एक्सपर्टीज नहीं ले पाया सुपरवाइजर के लेवल पर, तो मैनेजर और इंजीनियर बनेगा ना, तो वो संभाल नहीं पाएगा। और नॉर्मली प्रैक्टिस में मैं आज की डेट में ही देखता हूँ, मुझे 30 साल प्लस का एक्सपीरियंस हो गया, मैं ये देखता हूँ कि लोग बहुत जल्दी जंप मारते हैं, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसलिए कंपनी में कई बार स्ट्राइक होती है, कई बार कंपनी में जो है आप देखिए मैनेजमेंट में जो मैन पावर काम कर रही है वो खुश नहीं होती है। तो मैन पावर को खुश रखना एक अपने आप में आर्ट है, मैन पावर को संभालना भी अपने आप में एक आर्ट है, जो हर आदमी नहीं कर सकता। दैट इज अ चैलेंज फॉर एवरीबॉडी। मैं आज की डेट में अपने आप को बहुत एक्सपर्ट मानता हूं कि मैं सॉफ्टवेयर हैंडल करने में बहुत एक्सपर्ट हूं। किसी टाइप का भी सॉफ्टवेयर मुझे दे दो, आई एम वेरी मच एक्सपर्ट टू हैंडल दैट, कितना भी बिगड़ा हो मैं संभाल दूंगा। बट इट इज एवरी डे चैलेंज, किस आदमी से कैसे बात करनी है, किस आदमी का क्या बिहेवियर है, उसको क्या मेरा मेरा मानना यह है कि उस आदमी के अंदर घुस जाओ, सामने वाले के अंदर वो चाहता क्या है। जब आप उसके अंदर घुस जाओगे तो अपने आप वो डिलीवरी देना शुरू कर देगा। दैट इज माई थॉट। ह्यूमन इंजीनियरिंग आपने कहा, जैसे मतलब प्लास्टिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मैकेनिकल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, तो ह्यूमन इंजीनियरिंग वाली चीज है वो कहीं पढ़ाई नहीं जाती कॉलेज में हमें। तो ये हमेशा एक्सपर्टीज आती है, एक्सपर्टाइज जी, हमेशा काम एक्सपर्टीज करने से आती है। आती है। तो मतलब आपकी सोच और आपकी एक्सपर्टीज, आप कैसे लोगों के साथ बिहेव कर रहे हो, आप लोगों के साथ कैसा एंटरटेन कर रहे हो, आप काम के साथ काम की बात कर रहे हो, मस्ती के साथ मस्ती की बात कर रहे हो। क्या होता है, कोई भी ह्यूमन नेचर ये चाहता है कि हमारे बॉस के साथ जो है हमारे रिलेशन अच्छे रहे, नॉर्मली जी। ये सोचते हैं। हर कोई लेकिन चाहता बॉस है। के साथ रिलेशन ही अच्छे रहे कि काम के रिलेशन अच्छे रहे, दोनों चीज देखनी है। तो बॉस को भी ये देखना है कि उसको काम के साथ कितना ट्रेंड करना है कि हमारे रिलेशन अच्छे बने रहे उसके साथ। तो एक बहुत बड़ी ये आर्ट है, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, और इसको मैं चैलेंज के साथ किसी भी कंपनी में यूज करता हूं और मैं सक्सेस होता हूं।
एक सर जैसे मेरे को दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे जो सीनियर लोग होते हैं, ऐसा बहुत ज्यादा हमने देखा है कि कुछ हमारे इंजीनियर्स की भी कंप्लेंट होती है, जो यंग लड़के हैं, कि यार ये बॉस हमें सिखाता नहीं है और हमें ट्रेनिंग नहीं देता है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के मेंटलिटी के लोग हैं? क्योंकि हमने तो डेफिनेटली देखे हैं सर, बाकी भी एक्सपीरियंस आता है सुनने में कि इस तरह के बहुत लोग होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो बॉस जो करते हैं, आप क्या वो सही कर रहे हैं या फिर डेफिनेटली गलत तो कर रहे हैं, बट इसमें उनका खुद की ग्रोथ नहीं होती है और खुद वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वो जिस पोजीशन पे वहीं रहेंगे? तो जैसे मैं भी सर एक ऑटोमोटिव कंपनी में रहा, तो जी, वहाँ पे बड़ा अच्छा, मैं नाम भी लेना चाहूँ, मिंडा ग्रुप है, इट्स अ वेरी रिनोन्ड आई ग्रुप। नो। तो वहाँ पे एक कल्चर यस। था कि आप अगर नीचे वाले को सिखाओ ताकि आप आगे बढ़ो, और बिल्कुल ठीक है। ताकि वो आपकी सीट पे आए ताकि आप आगे बढ़ो। अब ये है कि आपने अपनी सीट पकड़ के बैठ ली, अब आप सिखा नहीं रहे हैं लड़कों को, इंजीनियर्स को, तो वो कहाँ से सीखेंगे? और ना खुद आप आगे बढ़ोगे ना वो इंजीनियर्स आगे बढ़ेंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, देखिए मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसके अंदर रहा है। आदमी ये सोचता है कि मैं अगर सिखा दूंगा किसी को तो मेरी जो है पोजीशन चेंज हो जाएगी, जी। या मैं उस सिखा दिया तो वो मेरी पोजीशन को अक्वायर कर लेगा और मैं जो है हैंडीकैप हो जाऊंगा। दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, टोटल नॉनसेंस थिंकिंग। इसमें आदमी को ये सोचना चाहिए, हमेशा किसी भी एक्सपर्ट को या किसी भी इंजीनियर को ये सोचना चाहिए, आई एम ए टीम लीडर। इफ आई एम ए टीम लीडर, how my team is going to perform actively, or without me if team is performing well, means I have to take another task, I have to go for another task. तो हमेशा चैलेंज लेने की कैपेसिटी अगर रहेगी, जिसको जिसको ये सोचने की कैपेसिटी रहेगी कि मैं टीम लीडर बनना चाहता हूँ, मैं बड़े अच्छी टीम का जो है एक बनना चाहता हूँ कि लोग मुझे ये बोले कि हाँ भाई किसी ने कुछ हमको जो है दिया था जिसकी वजह से हम आज स्टेबल हैं। वो एक कहावत आपने सुनी होगी शर्मा जी, पहले लोग कहते थे, अब तो नहीं कहते हैं, कि जो विद्या होती है वो कभी बांटने से बढ़ती नहीं है। मैं अपने यहाँ लोगों से ये बोलता हूँ कि विद्या बांटने से नहीं बढ़ती है। अगर मेरे पास स्किल है ना, तो वो मैं कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ और शर्मा जी कैसे यूटिलाइज करेंगे, दोनों का डिफरेंस है। जी। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण। मैं अपने जब भी सिस्टम में काम करता हूँ, मैं अपनी स्किल को यूटिलाइज करता हूँ मैन पावर कंट्रोल करने के लिए, या ऑपरेशन को सेट करने के लिए, या डिलीवरीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो कई बार मेरे मेरे जो वक्तव्य होते हैं, जो मेरे बात करने का तरीका होता है, वो दूसरा यूटिलाइज करने की कोशिश करता है एज ए कंपटीटर, लेकिन वो फेल होता है। फिर वो लोगों से कहता है कि मिस्टर तिवारी इज डूइंग द सेम बट ही इज नॉट गेटिंग फेल, आई एम गेटिंग फेल। तो दैट इज ए यूटिलाइजेशन ऑफ माइंड, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल। मैं स्किल को कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ, दैट इज माई विद्या, दैट इज माई लर्निंग। तो वो कहते हैं विद्या बांटने से बढ़ती नहीं, बढ़ती है। तो मैं अगर किसी को दे रहा हूँ ना, तो मैं अर्न कर रहा हूँ, लूज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अर्न कर रहा हूँ तो उसका मतलब यह है कि मैं एक लेवल ऊपर जा रहा हूँ, और मेरी चीज को अगर कोई दूसरा ले रहा है तो वो अपने तरीके से यूज करेगा, मेरे तरीके से यूज नहीं करेगा। वो ट्रू। हो सकता है सक्सेस हो सकता है सक्सेस ना हो। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि जो लोग इस चीज को बिलीव करते हैं कि मुझे किसी को सिखाना नहीं है, इसका मतलब उनको खुद नहीं मालूम कि मुझे करना क्या है। राइट। तो जिसको नहीं मालूम होता है वो आपको डिलीवरी देने में असमर्थ होता है, और फिर वो क्या प्रेशर जनरेट करता है अपने जूनियर्स में। दैट इज माई स्किल जी। या माई एक्सपीरियंस, कि वो अपने जूनियर्स पे प्रेशर जनरेट करता है कि जिसमें जूनियर छोड़ के भाग जाए, टिकने नहीं देते उसको। उसको टिकने नहीं देंगे। या किस मैनेजमेंट ने किसी को बाहर से हायर कर लिया तो उसको परेशान करेंगे कि भाई ये राइट। बाहर से नॉलेजेबल बंदा आ गया है, इसको नहीं रुकने देना, अदरवाइज मेरी जो है कुर्सी खतरे में आ जाए। तो दैट इज ए नॉनसेंस। मैं सोचता हूँ कि उस बंदे से, कोई बंदा किसी की जो है नौकरी पर हाथ नहीं लगाता, कोई बंदा किसी की नौकरी काटने के चक्कर में नहीं रहता। ये केवल हमारी सोच होती है जो हम एक दूसरे को काटते हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि जो नया बंदा आया है, अगर हमारी स्किल में कमी है तो वो मुझे देगा, और जो उसको भी जरूरत है मेरी स्किल की, ऐसा नहीं है, दोनों को एक दूसरे को स्किल की जरूरत होती है। तो दोनों एक्सचेंज करेंगे तो दोनों में से जो अच्छा होगा वो अपने आप को अप करेगा। तो हम ट्रू। क्यों नहीं कर सकते? ये सर मैं, जी जी तिवारी जी, ये तो बॉस की बात तो समझ में आ गई। जैसे आप जैसे लीडरशिप वाले लोग जो हमारे इंटरव्यू देख रहे हैं, डेफिनेटली जो हमारे इंजीनियर्स लीडरशिप रोल में जाएंगे या जो हैं, तो वो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको क्या यस। लगता है कि जो इंजीनियर जिसके साथ एक घटना हो रही है, जो भुगत भुगत भुग गया समझ लीजिए, जो नहीं उसको सपोर्ट मिल रहा था, उसको क्या करना चाहिए? कंपनी चेंज कर देनी चाहिए, बॉस चेंज कर देना चाहिए, या थोड़ा उसे डील करना चाहिए वहीं पे ऑफिस पॉलिटिक्स रहते हुए, उस तरीके से उसको हैंडल करना देखिए चाहिए? देखिए इसमें क्या होता है, दो तीन रोल होते हैं। कोई इंजीनियर अगर स्ट्रगल कर रहा है और मैनेजमेंट ने उस इंजीनियर को हायर किया है, तो एक लेवल होता है जो बॉस के ऊपर बॉस होता है, उसको भी बात करनी चाहिए, या एक एचआर मैनेजमेंट होता है उससे बात करनी चाहिए कि मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जो मेरा कैरियर अभी तक रहा है, तो जो बॉस का बॉस होता है
या जो चीफ होता है वो सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो जब देखता है कि ये बंदा अपने आप में एक्सपर्ट नहीं हो पा रहा है तब वो छोड़ता है उसको, अदरवाइज उसको खींचने की पूरी कोशिश करता है। तो मेरा मेरा जो अपना लीडरशिप का एक्सपीरियंस रहा है, लास्ट में जो सीमॉन कंपनी थी, तो मैं लोगों को ये लेक्चर देता था कि हमारी स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर घंटे दौड़ने की है, और मैंने अपना सबऑर्डिनेट रखा है, तो वो 80 में उन्होंने 60 या 50 में दौड़ा होगा, तो मैं 50 से उसको 80 पे कैसे लेके आऊंगा, ये मेरा काम है, दैट इज माय जॉब। लेकिन उसको दौड़ाने के लिए, उसको अपने पैरेलल लाने के लिए मुझे जो भी अपने टूल लगाने हैं, जो भी स्किल लगानी है, जो भी उसको ट्रेनिंग देनी है, वो मैं दूंगा। लेकिन वो कितना ग्रैस्प करता है, अगर वो ग्रैस्प करके आगे मेरे साथ बढ़ रहा है तो मैं उसको बढ़ाता रहूंगा, चलाता रहूंगा, उसको लेवल पे लेके आऊँ। लेकिन अगर वो एकदम ढीला है और डर रहा है, नहीं आ सकता मेरे साथ, वो हर बार बैठ जा रहा है, तो उसको मैं रख नहीं पाऊंगा अपने साथ, उसको मैं छोड़ दूंगा अपने हाल पे, तो वो परफॉर्म करेगा या वो बाहर जाएगा। समझ गया, मतलब वो जो लड़का है वो भी अपनी स्किल बढ़ाता रहे, वो भी अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाता रहे, तो उसे सपोर्ट मिलेगा। हाँ, दैट इज व्हाट मुझे, तो सामने वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए ना उस चीज को पकड़ने के लिए। राइट। कोई भी बॉस ओपनली नहीं बोलेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई नहीं बोलेगा। वो बैकएंड में बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर, और वो बैकएंड में देखता रहता है और वॉच करता रहता है और बैलेंस करने की कोशिश करता है कि इसके साथ क्या है, तो वो हमेशा फोकस रखता है कि क्या तकलीफ हो रही है। उस फोकस को बैलेंस करने के लिए वो बंदे को अपग्रेड करता है। जब वो अपडेट करता है, अपडेट करने की पोजीशन में वो बंदा नहीं आता है, तब उसको विड्रॉ कर देना पड़ता है। अदरवाइज कोई बंदा, कोई सीनियर नहीं चाहता है कि उसका टीम का मेंबर बाहर जाए। सर ये बात आपने बहुत अच्छी कही, तो जो व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं इंजीनियर्स, तो वो ये भी सोचे भी, तो जैसे जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जो एक लेवल तो डेफिनेटली जाएं, बट एक्टिवली जाएं और अपनी स्किल और कॉम्पिटेंसी को साथ बढ़ाते रहें। और कुछ भी नहीं हो सकता, लास्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली, अगर भाई बॉस की बात चल रही है और उनकी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही, तो भाई देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज, बहुत सारी दुनिया बहुत बड़ी है, बट अपनी कॉम्पिटेंसी जरूर बढ़ाएं। तो सर आपने बीच में एक बात कही थी कि जैसे आपने मैन पावर हैंडलिंग और मोटिवेशन का आपका जो है बहुत एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, 30 इयर्स आपका सर इंडस्ट्री में हो गया, आप लीडरशिप रोल पे जो है आप काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ टिप्स देना चाहेंगे सर, जो हमारे भाई लोग हैं, जो इंजीनियर्स, जो सुन मतलब दे आर व्यूअर्स एंड वो सुन रहे हैं कि यार ऐसा क्या 2-3 चीजें करनी चाहिए आपको लगता है, हालांकि देयर कैन बी नंबर ऑफ पॉइंट, पर अगर 2 या 3 मुख्य अगर बातें आप अगर शॉर्ट में बताना चाहें कि मैन पावर हैंडलिंग एक बड़ा ही एक क्रिटिकल चीज है, तो वो कैसे की जाए, या 2-3 ऐसे कोई की पॉइंट आप बताना चाहेंगे अपनी पर्सनल लर्निंग से? देखिए, मेरा मेरा जो अपना एक्सपीरियंस अभी तक रहा है मैन पावर हैंडलिंग में, एक तो क्या होता है कि हम मैन पावर को जब सोचते हैं कि ये मेरे से नीचे का आदमी है या जूनियर है, या उसको हम अपने तरफ अपने बराबर लाने की कोशिश नहीं करते हैं, या हम उसको एक डिस्टेंस मेंटेन करने की बात करते हैं, तो उस समय क्या होता है, वो मैन पावर हमें सपोर्ट नहीं करती है, और उसके दिमाग में आ जाती है कि ये समथिंग की ये हमारे बॉस है, लेकिन हम कोई बात नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि उसके एक हीन भावना बढ़ जाती है अपने आप में, फिर वो 4 लोगों को बोलता है कि भाई ये इस टाइप के हैं। वो क्या होता है कि एक आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत जल्दी नीचे जो वर्कफोर्स होती है उसमें फैल जाता है कि ये आपका एटीट्यूड, मतलब हमारे बॉस का एटीट्यूड बहुत हाई है और वो बात नहीं करना चाहता। तो जहां पर आप फंस रहे होते हो ना, उसको मालूम होता है, तो आपको सपोर्ट भी नहीं करता वो। उस केस में क्या होता है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग में गैप आ जाता है, और वो जैसे ही गैप आया वैसे वो डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, और वो डिस्टेंस कभी कंट्रोल नहीं होती, फिर वो बहुत ही नेगेटिव रूप में जाती है। तो इसमें एक सीनियर का और एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम इस चीज को कैसे किल करें। हम अपने एम्प्लॉय के साथ या अपने जूनियर्स के साथ हमारे रिलेशन ऐसे रहने चाहिए कि हम एज फैमिली काम कर रहे हैं, एज ए फैमिली। वो जो बंदा काम कर रहा है वो उसका जॉब है, जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा जॉब है, बट हमारा रिलेशन में कोई गैप नहीं आना चाहिए काम करने। और काम करने के रिलेशन और पर्सनल रिलेशन में डिफरेंस होना चाहिए ऑलवेज। जब हम काम करते हैं तो हम काम की बात करें, और जब हम गेट के बाहर जाए, कंपनी से बाहर जाए, तो हम पर्सनल टॉक करें और लोगों के साथ उठे बैठे, और ये एक बहुत बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट देगी आपको कभी भी। मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बहुत ही लेटेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वैसे तो मेरे हमेशा एक्सपीरियंस रहे कि मैं एक वर्कर है उसके बगल में भी बैठ जाता हूँ, चाहे मैं कितना बड़ा सीनियर लेवल पे आ जाऊँ, लेकिन उसके बगल में बैठ के उसको समझता हूँ कि उसकी नीड क्या है, वो कहाँ तकलीफ में, वो जो तकलीफ, वो कहते हैं ना लीन मैन्युफैक्चरिंग, वो आपने तो बहुत पढ़ाया है लोगों को, लीन मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज लीन? लीन मींस कुछ नहीं है, उसके अंदर के दिमाग की फालतू चीजें हटा दो उसकी। वैसे प्रोसेस में बोलते हैं ना, जिसमें अनवांटेड चीजें उनको हटा दो, ऐसे ही उस बंदे की लीन करना है। उस बंदे को समझना है इसके दिमाग में क्या फालतू चीज चल रही है, इसको सिर्फ काम की बात करो और इसको काम दो।
अगर आप उसको काम की बात करेंगे और उसको काम में लगा के रखेंगे, वो आपके साथ बहुत पॉजिटिव रहेगा और कभी भी आपको तकलीफ नहीं देगा, नेवर एवर। वो हमेशा रिस्पेक्ट देगा। वो कभी बिगड़ता भी है तो आप उसको संभालिए, ऐसे कहते हैं ना बर्तन को ठोक के बजा के करते सही करके रखना पड़ता है ना, वैसे उसको बजा के सही करके उसको कब डांटना है, कब प्यार करना है, कब उसको जो है बाहर खाना खिलाना है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए कि कब हमको करना है। जब आप इसको कर सकते हैं तब आप अपने जूनियर के साथ बहुत रिलेशन बनाए, वो जूनियर आपको सक्सेस कराएंगे। हर काम आप खुद नहीं करते हो, आपका जूनियर करता है, जूनियर का जूनियर करता है। तो वो क्या है, सक्सेस लाने के लिए हमें अपनी टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना रहता है। और वो कहते हैं साम दाम दंड भेद, ये हमारे में कहावत होती है। ये प्रोडक्शन, एक अच्छे प्रोडक्शन का आदमी साम दाम दंड भेद नहीं लगा सकता तो प्रोडक्शन का आदमी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक ठीक, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि एक जो है किस तरीके से मतलब काम लेना है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपके जूनियर्स अच्छा काम करेंगे या बेहतर काम करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है यस, कि लीडरशिप रोल जो पे अगर आपको जाना है नेक्स्ट लेवल पे, आप अदरवाइज क्या एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन के सीमित रह जाओगे। आप यस, कभी भी, जैसे आप प्लांट हेड रहे या अभी मैन्युफैक्चरिंग के रोल में है, तो आप कभी भी उस रोल पे नहीं जा पाओगे। तो नहीं जाता। डेफिनेटली आप एक रोल तक जा सकते हो एज के साथ, टाइम के साथ, बट आगे बढ़ना है आपको, लीडरशिप रोल में जाना है, तो आपको ये क्वालिटीज जो होनी चाहिए। तो सर अब आपकी बहुत जो जरूरी। जर्नी हुई थी उसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आप जैसे हरिद्वार में कैसे आपका जो ये जो हर की नगरी बोलते हैं, हरी की नगरी, उसमें कैसे आपका एंटर हुआ सर? देखिए, ये बताया ना कि ऑल सडन मुझे जो है कहा जाए कि एक इंट्यूशन हुआ कि मुझे उत्तराखंड की तरफ जाना है। मुझे बहुत फोर्स भी आया उत्तराखंड आने के लिए। जी और उस समय जब मैं पूना में था तो मैंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, नहीं नहीं मैं उत्तराखंड में नहीं जाऊंगा, आई एम द वेरी गुड इन पूना एंड मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर। बट क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि स्टार बन जाते हैं ना कि आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये सिमोन इलेक्ट्रिक जो है, ये पहले इंडो एशियन के साथ जेबी थी जब स्टार्ट हुई थी। तो some of the known person who came and joined as a CEO of the organization, and he was knowing very well about my capability and capacity. तो जब कंपनी लग रही थी तो उन्हें मालूम था कि मुझे बहुत अच्छे स्किल की जरूरत है, और अगर मुझे कोई कमजोर स्किल का आदमी मिलेगा तो मुझे स्टेब्लिश या करने में या आगे उसको चलाने में बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमारी स्किल को देखा हुआ था, उन्होंने मुझे सडनली बोला, आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। तो मेरे को एक ऐसा फील आया कि मेरा एक पुराना फैमिली का मेंबर मुझे कॉल कर रहा है। हाँ मैंने बिना कुछ सोचे हुए ब्लाइंडली हाँ कर दिया, जबकि आई वाज एंजॉयिंग ओवर देयर। बिना सोचे हुए मैंने हाँ कर दिया, ओके आई विल ज्वाइन, नो प्रॉब्लम, आई विल वर्क ऑन यू आर एज माय फैमिली मेंबर, आई कैन, नो प्रॉब्लम। जबकि मैं बड़े इंजीनियरिंग में जब काम कर रहा था तो वहाँ के जो उस समय के डायरेक्टर हुआ करते थे वो मेरे मतलब इतने मेरे से इम्प्रेस्ड थे कि वो मुझे छूना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे बोला, तिवारी जी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा सर मेरे करियर को है आप ब्रेक मत लगाएं, और आपके यहाँ बहुत कर दिया है, इतना सक्सेस ला के दिया है, आप किसी और को दे। नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत किया है, आप तो अब तो आपका एंजॉय करने का टाइम आया, फिर आप जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, मेरा काम है मेहनत करना और छोड़ देना। मेहनत किया, मेरे को सेटिस्फेक्शन आया, मुझे लगा मेरी अचीवमेंट हो, दैट्स ऑल। फिर उन्होंने बड़ा मुश्किल से मुझे छोड़ा था इनफैक्ट। और उसके बाद में 6 महीने तक के मैं हरिद्वार से उस प्लांट को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वहाँ के जो कस्टमर थे वो नहीं चाहते थे कि मिस्टर तिवारी जाए। उनको मालूम पड़ता तो वो कहते नहीं जी, वो मतलब बिजनेस तक ऑफलोड इम्पैक्ट करने को आता है। तैयार थे, ऑफलोड करने को तैयार थे, वो पोजीशन थी। तो मैं सडनली बिना किसी को बताए हुए क्विट किया वहाँ पर। यहाँ से 6 महीने मैंने उसको रोटेट किया फोन पे ही प्लांट को। और दैट वाज माय वेरी चैलेंजिंग जॉब, और बहुत ही मुझे इंटरेस्ट हो रहा था उस समय ऐसा काम करने के लिए कि मैं एक कंपनी को दूर से लीड कर रहा हूँ। जी फिर मैं हरिद्वार आया, हरिद्वार में इंडो एशियन ग्रुप कंपनी को ज्वाइन किया। उस समय कंपनी स्ट्रेच पोजीशन पे थी, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था जब मैंने ज्वाइन किया था। और सारी एक्टिविटी इवन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना, कंस्ट्रक्शन वर्क देखना, डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, और जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन करनी थी उस मैन्युफैक्चरिंग लाइन में मुझे घुसना, क्योंकि ये होम ऑटोमेशन एंड वायर एक्सेसरीज की लाइन थी जिसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और मैं इस एक्सपीरियंस में घुस रहा हूँ। तो मुझे देखना था, क्योंकि बीइंग ए प्लास्टिक इंजीनियर, प्लास्टिक का रोल था इसके अंदर, तो मैं इसमें आ गया था। लेकिन बट मुझे इनिशियल में इतनी मतलब बोला जाए जिम्मेदारी इतनी मिल गई कि मैं सारी चीज जिम्मेदारी को मैं इंटरेस्टफुली देखता रहा, टैक्टफुली लेता रहा कि जो मिला मुझे लेना चाहिए, ठीक है ये मिला ये भी ले लो, ये मिला ये भी ले।
मुझे बोला ये कमर्शियल देखना है, बिल्कुल ठीक है। मुझे लॉजिस्टिक देखना, बिल्कुल ठीक है, देख लूंगा। उन्होंने जी स्टोर देखना, बिल्कुल देख लूंगा। तो मैंने कभी मना नहीं किया कि मेरा काम नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, लाओ देते रहो, जो भी है देते रहो मुझे। और मैंने उसको ग्राफ्सिंग अपनी स्किल बढ़ाने में यूज कर लिया, मतलब इजी से अडॉप्टेबिलिटी ले ली और मैंने अपनी स्किल बढ़ाता गया। और स्किल बढ़ाने के बाद एक टाइम आपने मेरे को खुद देखा है कि आई वाज ए चीफ ऑफ दैट ऑपरेशन एरिया, और सारी चीजें टिप्स पे मेरे साथ चलती थी कि ये टिप्स में ये हो रहा है क्या, हमारी इन्वेंट्री लेवल मेरा क्या है, मेरी जो है मंथ की सेल क्या है, मेरी मार्केट से डिमांड क्या आने वाली है, वो मेरे टिप्स में होती थी। और मैं इजी से टीम को गाइड कर देता था और इजी से टीम हमारी कर लेती थी। मुझे कभी स्ट्रेस नहीं आया काम करने में। तो क्या हुआ कि मैंने किसी चीज को अडॉप्ट करने में टाइम नहीं लगाया, इसलिए मैं उस स्किल को पहुंचा पाया। मैनेजमेंट को भी ये लगा कि ये बंदा अडॉप्ट कर रहा है किसी चीज को, तो इसको वो रिलैक्सफुली टैक्टफुली मुझे देते रहे। मतलब बहुत सी हर्डल्स आए मेरे को, मैं आपको मतलब बहुत सी चीजें डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, बहुत हर्डल, बट हर हर्डल को मैंने बहुत इजी से हैंडल किया और इजी से मैं बाहर निकल गया। आप समझ सकते हो, एक ग्रुप कंपनी के अंदर मैं आ रहा हूँ और चीफ बन रहा हूँ, तो जी 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 छह छह महीने साल में टाइम तो कैसा निकलता है वो। जी जी बट हमारा ये था कि बट हमें काम करना है, आई मस्ट बी देयर टू डिलीवर एंड आई मस्ट बी देयर टू लर्न। हम अपनी ग्रोथ करने के लिए, कंपनी ग्रोथ करने के लिए जब हम लर्न करेंगे तो भी हम कंपनी को कुछ दे पाएंगे। अगर हम ही लर्न नहीं करेंगे तो कंपनी को हम कुछ दे नहीं पाएंगे। तो एज ए लीडर मुझे सब चीज लेनी है, और हमको उस लेने के बाद अपने दिमाग से डिलीवरी देनी है, और वो डिलीवरी देनी है जिसमें कंपनी को नुकसान नहीं होता हो, ट्रू कंपनी का लॉस नहीं होता हो। राइट। तो तो आप जैसे उसमें ये लीडरशिप जी उसमें ये ऑनरशिप बिल्ड हो गई मेरी, ओनरशिप इस आ गई। उस कंपनी के अंदर मेरी ऑनरशिप बिल्ड हो गई कि मेरी कंपनी है यार, इसको मैंने जो है मेरी बेसिक से सीखा है। उसमें गार्डनिंग कैसे करनी है, फ्लावर कौन से लगाने हैं, गार्डनर कहाँ से लाना है, जी उसको फैसिलिटी कहाँ से देनी है, मार्केटिंग वालों को कैसे मुझे रिटेन करना है, उनको मेरे को लंच प्रोवाइड कैसे कराना है। तो मतलब आप सोचिए कि मुझे एक एक चीज के अंदर मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया, उसके अंदर एक एक चीज के अंदर। आज मेरी एक्सपर्टीज ये है कि मैं एक किसी भी बिजनेस सीनियर को आप मुझे दे दीजिए, चाहे वो किसी टाइप का बिजनेस हो, मैं बहुत अच्छे से इजी से मेंटेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीजें अपने टीम्स पे काम किया। तो वो कहते हैं कि हमने ऑनरशिप ली। लोगों को मैं मैसेज देता हूँ, लोग जब ऑनरशिप लेंगे इस चीज को और वो सोचेंगे मेरा काम है, सबसे पहले ये सोचना है कि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, जी मैं ये अपना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपना प्रोफेशन सेल कर रहा हूँ। अगर मैं प्रोफेशन सेल कर रहा हूँ तो प्रोफेशन में मुझे अर्निंग भी करनी है, प्रोफेशन जितना अर्न कर लूंगा उतना सेल करूंगा मैं। तो प्रोफेशन अर्न करना बहुत जरूरी है, ना कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरी लिमिटेड एरिया है। गॉट इट। तो आपने तो सर ओनरशिप जैसे आपने बताया कि अभी जो हमारे व्यूअर्स सुन भी रहे हैं तो वो कमेंट कीजिएगा कि क्या चीज जो अब तक हम डिस्कस कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और मतलब शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये आपने बताया कि जैसे ओनरशिप आपने ली तो एक बहुत अच्छी जो है एक क्वालिटी जो है एक ओनरशिप बोलते हैं, तो ये बड़ा मैनेजमेंट मैनेजमेंट परेशान रहती है कि यार ये लड़के ओनरशिप नहीं लाते, या जो एम्प्लॉय है वो ओनरशिप नहीं लेता, नौकरी समझ के नो 9 to 5 देखता रहता है। सर ऐसी बात बनी हुई है, 2 पंच 1 लंच, अरे 2 पंच किया सुबह और शाम का, 1 लंच किया निकल क्या गया। बात तो डेफिनेटली तो वो एटीट्यूड जो है वो चेंज हमें भी करना होगा जो एम्प्लॉइज हैं या टीम है। तो ये बहुत जरूरी है। एक बात आपने सर कही कि जैसे मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ, ये मैंने भी देखा, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी जो हैं वो प्लांट हेड हैं या फिर सीनियर लीडरशिप पोजीशन पर हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर आप सीनियर लीडरशिप पोजीशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो अच्छे कर्म होंगे या आपके पुराने बॉस है, पुराने सीनियर होंगे, वो जो आप ट्रस्ट करते हैं वो आपको जरूर मौका देंगे, वो भी मौका देंगे। तो ये भी एक जरूरी बात है कि प्लांट हेड या सीईओ जो बड़ी पोजीशन होती है तो वहां पे कोई बड़ा डिफिकल्ट होता है कि नया बंदा एकदम हायर कर ले। मतलब अगर आपका बॉस है, जैसे आपने कहा भाई सीईओ कहीं चला गया या कहीं प्रेसिडेंट बन गया कहीं का, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो गुड वर्किंग है वो हमेशा जो है, जो चाहे बॉस आपका यहाँ नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, पुराने सीनियर है, वो देखते हैं, वो याद रखते हैं, और डेफिनेटली जब उन्हें मौका मिलता है तो वो आपको जरूर वैकेंसी देते। तो ये भी जरूरी है कि एग्जैक्टली अपनी एग्जैक्टली कंपिटेंसी बढ़ा के रखो, रिलेशनशिप अच्छे बना के रखो, और जब ये बड़ी पोजीशन तभी मिलती है जब आपके एक गुडविल और एक गुड बुक नेटवर्क आपका जो अच्छा होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखिए आज की डेट में शर्मा जी बताएं, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं ना, जी अगर आप जी बिजनेस भी कर रहे हैं तो रिलेशनशिप का बिजनेस है, क्योंकि कंपटीशन इतना एब्सोल्युटली। ज्यादा है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको अगर जानते हैं कि हाँ भाई तिवारी जी को जानता हूँ, तो तिवारी जी ने अगर 2 पैसे महंगे भी दे दिए तो बोले यार ठीक है अपना याद भी दे दो, ले लो।
लेकिन अगर आप जानते हो कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, आप उसको जो है कहोगे जी 2 पैसे कम का मैं माल देने वाला हूँ, तो बोलेगा नहीं कि यार पता नहीं क्या रिस्क होगा, ये होगा, 4 चीजें बताएगा, नेगेटिव फैक्टर बताएगा और बोलेगा जी मैं बाद में बताऊंगा। तो ये मार्केट में चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशन में हो, टीम वर्क को कहते हैं टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अगर आपके पास है, टीम वर्क आपके पास है, ऊपर वाले भी आपको जानते हैं, नीचे वाले भी जानते हैं आपको, तो आप कहीं पे रहोगे, कहीं परफॉर्म कर रहे होगे, तो आपके लोगों के दिमाग में घूम जाएगी यार फला बंदा अगर होता तो इस काम को सक्सेस कर देता। तो अगर इस काम को सक्सेस कर देता तो यार वो गया क्यों? अच्छा वो दूसरी जगह गया तो कोई बात नहीं यार, वो दूसरी टीम में डेवलप कर रहा है, अभी जूनियर को क्या सिखाया वो तो बताए, जूनियर वाला भी तो आएगा। तो जो उस बंदे ने जूनियर को सिखाया है तो सक्सेस है जी, अदरवाइज सक्सेस नहीं है। और ये लर्निंग मुझे कब मिली थी मेरे बॉस से, मैं आपको बताऊं कि जब मुझे 93 में एक मौका मिल रहा था जर्मनी जाने का, तो बीइंग मैं अपने डिपार्टमेंट का इकलौता आदमी था, प्लास्टिक डिवीजन का इकलौता आदमी था, तो मेरे जनरल मैनेजर ने मुझे बोला कि तिवारी जी अगर तुम ऐसे इंडिपेंडेंट रहोगे तो तुम कहीं बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम लोगों को ट्रेन करो, देन ओनली यू विल गो, तभी आप परफॉर्म कर पाओगे और दूसरा मौका आपको मिलेगा। यार मेरे बात वो दिमाग में बैठ गई और मैंने लिटरली उस दिमाग को मार डाली। उसके बाद से मैंने पलट के नहीं देखा। मैं जब भी किसी काम करता हूँ तो अपने स्टेशन तैयार करता हूँ सबसे पहले। तो गुड। ये उससे उलट है जो हम बात कर रहे थे पहले, कई सारे जो बॉस होते हैं बड़े ही मतलब एक इनसिक्योर फील करते हैं, तो ये बिल्कुल उससे उलट है हाँ कि आप जब भी स्टार्ट करते हैं तो अपने जूनियर से अपने टीम तैयार करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं। बहुत बस ही बेहतर बात है। सबसे पहले एम्पावर उनको कर दो, जो अपनी नॉलेज है उनको दे दो। जैसे ही आप अपनी नॉलेज उनको दोगे वो एम्पावर्ड हो गए, तो आपकी नॉलेज उन्होंने लेकर एम्पावर्ड हो गए। एम्पावर्ड हो गए तो अगर आप वहां से स्विच कर रहे हो तो कंपनी को इफेक्ट नहीं होगा। जब कंपनी को इफेक्ट नहीं होगा तो वहां के बॉसेस होंगे, ऑनर होंगे, वो देखेंगे यार ये बंदे जाने के बाद भी कंपनी को इफेक्ट नहीं हुआ है, तभी मौका मिलेगा उसको चांस दिया जाएगा। बल्कि ये बिल्कुल उल्टा है, दो लोग सोचते हैं अरे हम चले गए तो कंपनी इम्पैक्ट आया तो हमें याद करेगी। आप जो कह रहे हैं वो एक्चुअली रियल ऑब्जर्वेशन है, जो सीनियर्स जैसे सोचते हैं, सीईओ सोचता है, एमडी सोचता है, वो आप बोली बात करेंगे हाँ यार इसने इतना अच्छा ट्रेन किया था कि ये बंदा जो है आज इसका जूनियर इतना अच्छा काम कर रहा है, नहीं उसने अच्छा ट्रेन किया था। तो अच्छा ये, ठीक और अगर कुछ गैप करके जाएगा बोलेंगे यार यार वो चला गया गैप करके, मतलब कुछ ने कुछ सिखाया नहीं, तो उल्टा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। आप सोचेंगे कि आपके जाने से काम मतलब रुक गया, तो आपका बॉस, आपका एमडी सीईओ अच्छा फील करेगा, तो आप कह रहे नहीं, वो उल्टा फील करेगा, वो कहेगा यार यार ये सिखा के नहीं गया। तो ये आपने सर आज मेरे लिए भी बड़ी अच्छी लर्निंग रही, और ये बहुत ही नई बात आपने बताई। और इसी तरीके से हमारे प्रोफेशनल्स को सोचना चाहिए कि ऊपर वाला सब देख रहा है, और जो टॉप मैनेजमेंट सीईओ वो दे अंडरस्टैंड, समझते हैं सारी चीज कि आप कितना सिखा रहे हैं, कितना आप में टीम वर्क का जो एक भावना है वो बहुत जरूरी भी है इस पोजीशन के लिए बिल्कुल। खासतौर पे। बस मेरा केवल एक ही एक हमेशा कहना रहेगा कि जो जिसको लिटरेसी पुअर होती है वही इनसिक्योर फील करता है, जिसको नॉलेज स्ट्रांग होती है वो इनसिक्योर कभी फील नहीं करता है। वो अपनी जर्नी को आगे देखता रहता है, वो कहता है कोई नहीं, अगर हमको इस कंपनी में नहीं तो दूसरी कंपनी में, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है तो आई कैन डू जी, एनीवेयर। तो यहाँ पर इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी वाला भाव यही पे आता है कि आप अपने आप को स्किल स्ट्रांग करिए। जब आपकी स्किल स्ट्रांग रहेगी तो डिलीवरीज अपने आप कंपनी को मिलेंगी और आपकी लर्निंग होगी, आप स्ट्रांग होते जाएंगे। बहुत जबरदस्त सर आपने जो बात कही, बहुत ही पते की बात कही। और जिस भी सीनियर से मेरी बात हुई है, जितने भी हमारे जो एक्सपर्ट से बात हुई है, तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा मेन यही निकल के आया कि लर्निंग और स्किल जो है हमारे हाथ में है, उसे हम जो है स्ट्रॉन्ग करता रहें, और मौका जरूर बिल्कुल मिलते हैं। तो सर कुछ आप, इतना आपका 30 ईयर का अनुभव रहा, तो हमने कोशिश करी कि छोटे से समय में उसको समेटने की। ऑब्वियसली जी जी। पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी। और आपने भी सर बहुत कम समय में एक अपना समय देकर एक बहुत ही कंसाइज लर्निंग आपने हमारे साथ शेयर करी। सर कुछ आखिरी मैसेज आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, उनको कुछ कहना चाहेंगे? सर जी मैंने इतनी लंबी में इतनी बातें मैंने बता जी। दी है कि जिसको पकड़ना होगा उसमें बहुत सी चीज निकाल लेगा। निकल ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरा एक्सपीरियंस है जिसको पिकअप करना होगा उसमें इतनी चीजें हैं निकालने के लिए कि कहीं भी हाथ डालेगा कुछ निकल के आ जाएगा उसमें। तो स्पेशल तो कुछ कहने की बात रही नहीं गई। सो नाइस। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार तो इसको लाइक कर दें और इसको थम्स अप भी कर दें, ताकि जब हमारी अगली वीडियो इस तरह की आए एक्सपर्ट के साथ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये मैं चाहूंगा आपको, राज तिवारी सर के साथ जो हमारे इंटरेक्शन रहा, सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, और किस बात को आपको लगता है कि आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जीवन में लागू करेंगे, तो एक बार कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। और मैं जरूर सर को भी वो कमेंट जो है शेयर आपसे भी वो शेयर करेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इस शो पे आए, एक्सपोटॉक सीरीज में आए, आपने हमारे जो व्यूअर्स को एनलाइटन किया और इस तरह का लर्निंग जो है आपने उनसे शेयर करी और आपने समय निकाला सर अपने बिजी शेड्यूल से, तो सर आई एम सो थैंकफुल टू यू। आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। Sir, thanks. Same to you also. You have just given me the opportunity to join with this and say our expertise. Even then, same. It is not this much of journey. It cannot be a very short time. We can deliver to everybody's. But शर्मा जी, कभी भी आपको कभी कोई ऐसा लगे, कभी कहीं जरूरत पड़े तो आप हमेशा कभी भी कॉल करिए, कभी भी मुझे बताइएगा, मैं जरूर आपको या आपके व्यूअर्स को या जो भी हमारे जूनियर्स होंगे या जो भी जानना चाहते हैं उससे कुछ जर्नी के बारे में, तो मैं जरूर बताऊंगा। सर थैंक यू ये वेरी मच हमारी सर। हाँ, ठीक है सर। जी धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपका एक अलग से भी मैं सेशन कराऊंगा सर अपनी टीम के साथ, जिसमें हम अपने मेंबर्स हैं विदाउट एनी कॉस्ट, हमसे उनसे कोई चार्ज नहीं करते हैं, मतलब वो हमारे ऑलरेडी मेंबर हैं, ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन उन्होंने हमसे ले रखे हैं, तो उनको मैं एक सेशन सर ऐसा कराऊंगा कुछ दिनों में। मैं विकल्पा कहूंगा कि आप उस सेशन में भी आके एनलाइटन करें, आधे एक घंटे का सेमिनार, मतलब एक जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, लड़के आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, तो मैं वो भी चाहूंगा सर आप वो करें। No problem. Sure. Always welcome, sir. Always, I am ready to teach, to give my knowledge. I want to make juniors, make the upcoming youngers to develop on that level, to think about that level, how they will grow and what is the requirement to grow. थैंक यू सर। Success will never hold if people will think as a whatever we are doing as to increase our skill, and once we are going to increase our skill, obviously we are going to deliver to company. Yes, absolutely. So first to increase our skill, and delivery will be happen in a parallelly. यस सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इसको एडिट करके सर हम 10-15 दिन लगेंगे, तो आपसे भी सर शेयर करेंगे। बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद सर। सर आपका। Okay, थैंक यू thank you sir, सर, thank थैंक you यू so सर, much. गुड डे सर, Bye. गुड नाइट सर।